Ladies and gentlemen, it is an honor and privilege to have amongst us Shri Suresh Kumar Khanna ji, Honorable Cabinet Minister for Finance and Parliamentary Affairs, Uttar Pradesh, Prabhari Mantri, Varanasi District. Sir has been a prominent figure in Uttar Pradesh's political landscape for several years. His visionary leadership has played a pivotal role in shaping financial policies and driving legislative reforms. His expertise in public and finance and governance has earned him recognition, making him a key architect of Uttar Pradesh's financial progress. We are truly grateful to have you with us today, sir. Now I invite Sunbeam board members to kindly come forward and felicitate our esteemed chief guest. I even request Devin Patel ji sir, Shailendra Maurya ji sir, Pradeep Patel sir, Ashutosh Pal sir, Kuldeep sir, Aman sir, and other secretaries. Dear audience, can we hear it louder for our Cabinet Minister, Shri Suresh Kumar ji sir? So, thank you for being a leadership sign for the country, for the youth of the nation. I request Khanna ji sir से अनुरोध करूंगी कि वह प्रस्थान करें. Now next, I request our board members to please felicitate Devin Patel ji sir. Sir प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता युवा मंच. Now I request Shailendra Maurya ji sir, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, please come forward and accept a token on behalf of Assembly Women's College, Varuna. Shailendra Maurya ji sir, क्षेत्रीय जनता अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के. लीजिए आगे चलिए. Next we have Pradeep Agrawal sir. I request Pradeep Agrawal sir, please come forward. Sir महानगर के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी. Next we have Ashutosh Pal sir, महामंत्री काशी क्षेत्र भारतीय जनता युवा मोर्चा. Ladies and gentlemen, Ashutosh Pal sir, महामंत्री काशी क्षेत्र भारतीय जनता युवा मोर्चा. We welcome you sir. Kuldeep Singh sir, जिला अधिकारी हैं, event organizer of today's interactive session. I request Kuldeep sir to please come forward and express their gratitude on behalf of St. Women's College, Varuna. जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा. Request Aman sir to please come forward and accept a gratitude on behalf of St. Women's College, Varuna. Rajat sir, अध्यक्ष from भारतीय जनता युवा मोर्चा. I request Rajat sir to please come forward. Our Vice Chairperson, Mr. Bharti Madhu, please come forward to address the gathering. Thank you, sir. Thank you, ma'am. जय हिंद एवरीवन एंड सनबीम वरुणा में आप सबका स्वागत. और आज खुशी सिर्फ इस बात की हो रही है कि जिनको हम इतने सालों से एडमायर करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वो आज हमारे बीच में हैं. मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे चीफ गेस्ट सुरेश कुमार खन्ना जी, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, प्रभारी मंत्री वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, and all the gathered very important guests. It's indeed a matter of pride and privilege for me to welcome you, sir. आप हमारे बीच में आए और सबसे खुशी इस बात की हो रही है that children are sitting here and बच्चों को मैं सुबह से यही बता रही थी कि बजट जानना is like a Google map. Next 5 years हमारा देश किस डायरेक्शन में जाएगा
और हम उसका कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं इस बात की चर्चा करने के लिए। तो मैं ज़्यादा समय ना लूँगी, बट आई नो द पर्सन हु इज सिटिंग हियर टुडे, Mr. Khanna, has got a wealth of knowledge and tremendous experience. I'm sure whatever he'll say, whatever he'll tell all of us, we all will be benefited. I'll request each one of you, so be like a soaking person, just soak in everything, and I'm sure it will give you good direction. A very warm welcome to you, sir. बजट हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विधानसभा की कार्रवाई के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जिन जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, उन्हीं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही हम एक एक पैसा खर्चे का पहले विधानसभा से अनुमति लेते हैं, अर्थात विधानसभा में पास कराते हैं, उसके बाद ही खर्च करने की अनुमति हमको मिलती है। 1 रुपया भी हम खर्च करते हैं तो हमें विधानसभा से उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। हम लोग समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बजट चर्चा को देखते रहे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट मैंने विधानसभा में 20 तारीख को पिछले महीने की प्रस्तुत किया था, उसी के कुछ बातें हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि कोई महत्वपूर्ण बात न छूटे, लेकिन चूंकि विस्तृत सब्जेक्ट है, इसलिए आप लोगों के लिए हो सकता है कई बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण हों, इसलिए मैं विशेष रूप से कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स पर भी फोकस करूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार जब से 2017 में योगी जी के नेतृत्व में बनी, तब से मोटे तौर पर ये देखा गया कि हर क्षेत्र में जो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा था 2017 तक, वो हर क्षेत्र में ऊपर की तरफ जा रहा है, अर्थात बेटरमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार ये वृद्धि हो रही है। पब्लिक परसेप्शन कोई एक घटना से नहीं बनता, लगातार चेन ऑफ इवेंट्स हों, लगातार घटनाएं ऐसी हों और वो लोगों को प्रभावित भी करें, उसी से पब्लिक परसेप्शन बनता है। और आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन एक प्रोग्रेसिव स्टेट का बना है। ये मैं नहीं, जितने हमारे मूल्यांकन करने वाले लोग हैं, साथ ही साथ चाहे वो इकोनॉमिस्ट हों, नीति आयोग के लोग हों, या फिर इस विषय पर दक्षता रखने वाले लोग हों, उन सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन सकारात्मक है। लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जो दूसरे प्रदेशों में धारणा रखते हैं वो भी अच्छी है, और साथ ही साथ जो आर्थिक पहलू है उस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण काम भी हुआ है। और ये तभी संभव हो पाया जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई। उत्तर प्रदेश में लगातार जो रूल ऑफ लॉ की अवहेलना हो रही थी, योगी जी के आने के बाद पूरी तरीके से रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हुआ और वो नीचे तक परकुलेट हुआ। और उसी का ये परिणाम है कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन कर सके और विभिन्न विभागों को इसके लिए प्रेरित भी कर सके। उन्होंने भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए प्रोग्रेस प्रदर्शित की है। अभी जैसा कि आपके हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने अपने स्वागत उद्बोधन में बताया कि 25-26 का जो बजट है उसका साइज 8,08,736.08 करोड़ रुपए है। निश्चित रूप से ये पिछले साल के बजट से अर्थात 2024-25 के बजट से उस लगभग 72,298.35 करोड़ रुपए अधिक है।
जैसे कि आपने बताया कि हम बच्चों के लिए 2 स्कीम हैं। पहला तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है और दूसरा ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना है। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? क्या एक ही समय में इन दोनों योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है? कन्या सुमंगला योजना प्रदेश सरकार की है और सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार उठाया जा सकता है। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में शिक्षा को या तो किफ़ायती या तो फ्री कर दिया गया है, और जिस तरह से भारत के बजट बन रहे हैं, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे लिए भी शिक्षा किफ़ायती कर दी जाएगी? क्या इस वक्त आपको जानकारी नहीं है कि शिक्षा फ्री है ग्रेजुएशन तक? है सर, लेकिन आगे बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी शिक्षा बहुत हाई प्राइस में मिलती है। देखिए, उसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी है, और मैंने आपको जैसा बताया कि उसके लिए अभ्युदय कोचिंग भी है। हमने 23,000 बच्चों को वर्तमान ईयर समाज कल्याण योजना है, समाज कल्याण विभाग की, 23,000 बच्चों को इस बार अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से ट्रेंड किया, और ग्रेजुएशन तक की शिक्षा तो फ्री है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आज की दुनिया में खासकर कार्य क्षेत्र में हर कोई एआई और डिजिटल स्किल पर निर्भर है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जो बजट लेकर आई है उसमें ऐसी कौन सी विशेष योजना है जिससे कॉलेज स्टूडेंट इन स्किल्स में प्रशिक्षित हो सकती है और उनको फ्यूचर जॉब रेडी बनाया जा सकता है? एआई के माध्यम से हमने लखनऊ में, ये सही है कि ये नया सब्जेक्ट है, और अगर इसको एक लाइन में हम परिभाषित करें एआई को, तो अभी तक अगर हम गूगल के माध्यम से साइकिल पे जा रहे थे, तो इस योजना के माध्यम से हम मोटरसाइकिल पे बैठ जाएं। अर्थात इसकी गति फास्ट है और बहुत चीज़ें अपने आप में निकल के आ सकती हैं। इसलिए हमने लगभग 40 बीघा ज़मीन लखनऊ में इसके लिए आइडेंटिफाई भी की है, और उसके लिए 5 करोड़ की व्यवस्था भी की है। उसको हम खास तौर से और आगे बढ़ाने के लिए उस पर गहन अध्ययन, गहन इन्वेस्टिगेशन और गहन चिंतन मनन, गहन जिससे कहना चाहिए रिसर्च की आवश्यकता भी है। उस पर हमारा पूरा ध्यान है और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने बजट की पारदर्शिता को हमारे सामने प्रस्तुत किया, वह हमारे लिए बजट को समझना अत्यंत आसान बना देता है। इस वक्तव्य के लिए हम सभी युवाओं की तरफ से आपको हृदय से धन्यवाद। मैं आपका स्वागत सनबीम स्कूल के वरुणा शाखा में कर रहा हूँ, और प्रफुल्लित हो रहा हूँ, गौरवान्वित हो रहा हूँ कि आज आप हमारे बीच में हैं, और आपने जिस प्रेम से, जितना आपने पैशन से, जो अंग्रेजी के शब्द है पैशन, आपका पैशन देखने को था, और आपके हाथों में पूरे आंकड़े थे, और आपने जितना फोकस्ड होके वो बात कही, ये अद्भुत थी। हम सब ने देखा इसको, और मैं चाहता हूँ एक बार फिर से कर्तव्य ध्वनि से, जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने आज हमारे बीच में इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी क्लैरिटी के साथ हमें बताया कि उत्तर प्रदेश किस तरफ जा रहा है। और जैसे बच्चों आपको पता है, और यहाँ आए हुए सभी हमारे गेस्ट को, अतिथियों को मालूम ही होगा कि इकोनॉमिक पावर ही दुनिया की पावर होती है। आप सब लोग जान रहे होंगे कि कभी ट्रम्प साहब टैरिफ लगाते हैं तो कभी कनाडा टैरिफ लगाता है। तो हमारे देश की इकॉनमी को और उसकी पावर को बढ़ाने का 24 लाख करोड़ और 12 लाख करोड़ मात्र 5 वर्षों में, और उसके बाद जो हमारा उद्देश्य है, जो आज हमने सीखा, हम सब ने सीखा ये बात, हम 88 लाख करोड़ तक अगर हमें जाना है, 5 ट्रिलियन इकॉनमी तक जाना है, तो अगले 5 वर्षों में रोजगार के अवसर और केवल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही जाके नहीं बनते, हमको अपनी सोच से रोजगार क्रिएट करने हैं, हमको स्टार्टअप्स लाने हैं, हम लोग क्रिएटिविटी लानी है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है, हमें भविष्य की तरफ देखना है, एआई को देखना है, हमें भारत को ऐसी जगह पहुंचाना है जहां जर्मनी और जापान हमारे आगे ना कुछ भी न रहे। हमें तीसरी व्यवस्था तो होना ही होना है। अमेरिका, चाइना और इंडिया और चाइना एक दूसरे से
एकदम अगल बगल हैं, हम उनसे हमको कॉम्पीट करना है। और इसके लिए अगर भारत को ट्रिलियन इकॉनमी बनना है और उत्तर प्रदेश भारत का हृदय है और बनारस उत्तर प्रदेश का हृदय है, इस हिसाब से सनबीम की छात्राओं का और आप सब लोगों का ये दायित्व है कि आप खूब पढ़ें और खूब सीखें और ज्ञान प्राप्ति करके ऐसा बिजनेस करें, ऐसा रोजगार करें, ऐसा आप क्रिएटिविटी लाएं कि समस्याओं का भी अंत हो और रोजगार की प्राप्ति हो और हमारे प्रदेश का जो जीडीपी है, जीएसडीपी, वो हमारा अधिक से अधिक बढ़े। I request the students to please remain seated.